Hello, good morning students. Welcome back to the channel BBVN Online Classes. Today in this class we are going to start the new exercise 1.5 that totally depending on the complement of a set. In the last video we are going through the basic introduction or the complete introduction of complement of a set, some properties regarding the complement of a set, and that complete property and complement of a set we are completely discussed in this exercise 1.5. That complete exercise depend on complement of a set. What is the complement of a set? Complement क्या था? Set of all those elements in which there will be a universal set and a set regarding the subset of the universal set. मान लीजिए कि U आपका universal set represent करता है वहाँ पे और A इसका subset है, then A complement is what? Universal minus A, set of all those elements of U which doesn't belong to set A. Then it means the complement of a set representing all those elements which belongs to the universal set but not belong to the given set. ये आपका complement था और इस पर हमने कुछ properties भी की थी. Law of complements, लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ था आपका, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट था, लॉ ऑफ फाई एन यूनिवर्सल था, वो सब हम अप्लाई करने वाले. कुछ वेन डायग्राम्स थे इसके, ठीक है. सो एक्सरसाइज 1.5, प्लीज ओपन योर बुक, ओपन द पीडीएफ ऑफ बुक. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं? लेट यू, हमारे पास यू कोई यूनिवर्सल सेट है एंड दैट इज व्हाट 1 to 9. द एलिमेंट सेट ऑफ कंटेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Second one, the given set A and that is 1 2 3 4, that is 1 2 3 4. Set B, that is 2 4 6 8, 2 4 6 8, and set C, that is 3 4 5 6, 3 4 5 6. Find first A complement, second B complement, third A union C and its complement, fourth A union B and its complement, fifth one is double complement, and sixth one is B minus C and its complement. ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5. यूनिवर्सल सेट दिया है, कुछ रिगार्डिंग इसके सबसेट्स ना, बिकॉज दे ऑल आर द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, राइट. क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी तो यही थी कि किस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का हमेशा एक सबसेट होता है. हालांकि कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होता है लेकिन जो दिया हुआ सेट वो आपका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है. तो दो सारे सेट दिए हैं ए बी सी, दे ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन यूनिवर्सल सेट यू विच कंटेन्स फ्रॉम द एलिमेंट 1 to 9. फाइंड क्या क्या पूछा है हमसे, आप ये निकालिए. क्या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, complement of B, the complement of union of A and C, the complement of the union of A and B, double complement and B minus C and its complement. चलिए फर्स्ट A complement, जनरली U minus A होता है, that is what U minus A. U means universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus A, the collection of element 1 to 4, 1 2 3 and 4. The difference of set, the set of first element which doesn't belong to second set. तो कौन कौन से नहीं है, 1 से लेके 4 तक छोड़ दो, 5 से लेके 9 तक, that is the complement ना. The complement is 5 6 7 8 and 9, that is what A complement. सिंपल सा आंसर है, ठीक है. कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल आंसर्स हैं, बस आप देखते जाएं कि कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है, ठीक है. ये तो आपका पहला. दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट, इन द सेम मैनर यूनिवर्सल माइनस बी. यूनिवर्सल वही आपका 1 to 9 माइनस व्हाट इज बी 2 4 6 8, सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8. सिंपल सी बात है कि 1 से 9 तक इवन भी हैं और ओड भी हैं, तो इसमें 2 4 6 8 दे ऑल आर इवन. Then the remaining element, rest of the element are what? Odd number. कौन कौन से? 1 3 5 7 9. Then what is B complement? The B complement set of all odd number that are 1 3 5 7 and 9. This is B complement. right? The third part, the union of A and C and its intersection.
union of A and C and its complement. So first of all we find the union of two set and that is what? A and C का union. When A union C, set of all those of the element of two set but no element will repeat. तो देखिए 2 इसमें नहीं है, A union C करना आपको ना, ये आपका A है और ये आपका C है. 1 2 3 4 3 4 ये रिपीट हो रहे हैं और 5 6. तो 1 2 5 6 और ये कॉमन एलिमेंट है बट लिखे एक बार जाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 6 दैट इज A यूनियन C. तो यूनियन ऑफ टू सेट इज ए सेट ना, ये भी तो एक सेट ही है. देन व्हाट इज A यूनियन C एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट? दैट कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस A यूनिवर्सल C. तो यूनिवर्सल में आपके कितने हैं 1 2 9 और यहाँ कितने हैं 1 2 6. तो कौन कौन से बच गए 7 8 9. देन व्हाट इज द A यूनियन C एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट 7 8 एंड 9. ठीक है. नेक्स्ट वन A union B and its complement. What is A union B बेटा? A union B आएगा सर जनरली द कलेक्शन ऑफ ऑल द टू सेट्स 1 2 1 2 3 4 यानी कि 2 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है और 6 8. तो क्या आया 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है. देन व्हाट इज A यूनियन B एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट? देन अगेन यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B. इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ U विच डजंट बिलोंग्स टू A यूनियन B दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. तो इसमें 1 to 9 एलिमेंट है. यहाँ आपके पास कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है. It means 5 7 9 is the set of the element which belongs to the complement of the union of A and B. Next, the double complement of a set. The set is what? A. And you know that by double complement property we can say that the double complement of the set A complement is what? Set itself. वो हम वेरीफाई करेंगे. देखिए A complement क्या आएगा आपके पास? A complement आएगा सर 5 6 7 8 एंड 9. क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट क्या है यूनिवर्सल माइनस A. तो 1 2 4 ये रह जाएंगे, आगे वाले एलिमेंट 5 6 7 8 9 दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट अगेन. तो इसका कॉम्प्लीमेंट मैं करूंगा फिर से. ये कोई सेट मैं B दे दूँ मान लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट ही है. तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस A कॉम्प्लीमेंट. अब A कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन से हैं 5 to 9. तो 5 to 9 थोड़ी आएंगे, कौन कौन से आएंगे 1 to 4. ये आ गया आपके 1 2 3 4 and that is the set. Which set is this? A set. It means the double complement of a set gives the set itself. And last one is the difference of B minus C. B and C का difference and its complement. First of all we find the difference of B and C, that is B minus C. Set of B element which doesn't belongs to C. तो B के कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है? देखो 4 इसमें है, ठीक है, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 8 नहीं है. Then B minus C is what? 2 8. Then what is B minus C and its complement? That is universal minus B minus C. Universal minus B minus C. Universal is what? 1 to 9. And what is B minus C? 2 8. 2 8 को छोड़ दो, सारे एलिमेंट कौन से 1 2 नहीं आएगा आपका, 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आएगा. This is the definition of the complement of B minus C. In totally complete part first, second, third, fourth, fifth, sixth, सब में हमें क्या निकाला? वही कॉम्प्लीमेंट. हालांकि इसमें यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, डिफरेंस भी है, डबल कॉम्प्लीमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन रूल्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन फिर से आपके पास वही प्रॉपर्टी लेके आएगा. क्या कह रहे हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है एक, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके पास दिए गए हैं ABCDEFGH. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. फिर से आपको क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालने. तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी इतनी ईजी है कि आप आराम से उसको डिनोट कर सकते हैं. कई बार आपसे वेन डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स या कॉम्प्लीमेंट सेट के आप वेन डायग्राम भी ड्रॉ करो. तो वेन डायग्राम से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि मान लीजिए हमने आपको कोई यूनिवर्सल सेट U दिया है दैट कंटेन्स द एलिमेंट A B C D E F G and H. A B C D E F G H. Find the complement of first set A and that is what? A B C. A B C. Second set U आपका दिया है B सेट. सेकंड सेट में दिया है B दैट कंटेन्स एलिमेंट D E F
जी। थर्ड जो सेट आपका है सी, दैट कंटेन्स एलिमेंट ए सी ई जी, ए सी ई जी। एंड फोर्थ वन इज दैट इज डी सेट एंड दैट एफ जी एच ए, ये है आपके पास। ठीक है, प्लीज मैच द सेट। यूनिवर्सल सेट फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी एच, A set ABC, B set D E F G, C set A C E Z and D set F G H A. We have to find the complement of each and every set. हमें सबके कॉम्प्लीमेंट चाहिए। A कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल के वो सभी एलिमेंट्स जो इससे बिलोंग नहीं करते हैं, तो फर्स्ट थ्री एलिमेंट ए बी सी यहाँ से लेके ये तक कौन कौन से है, D E F G एंड दिस इज H. D E F G H denote the complement of the set A. Second, B complement, that is again universal minus B. Universal minus B. What is this element? U के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, कौन कौन से नहीं, देखिए A क्या है इसमें, नहीं है सर, B नहीं है सर, C वो भी नहीं है, D E F G H नहीं है। This is B complement. Now C complement is what? Universal minus C, set of all those element of U which doesn't belongs to C. तो U के वो एलिमेंट C से बिलोंग नहीं करेंगे। A B कहाँ इसमें, नहीं है सर, C है, D नहीं है, E है, F नहीं है, G है, H नहीं है। They are the representing the set of C complement. D complement, the set of U. D complement is universal minus D, set of element of U which doesn't belong to D only. Then this is what? F G H A है, तो A आ गया आपका, B आएगा, C नहीं है इसमें, D वो भी नहीं है, ठीक है, D E भी नहीं है, F है, G है, H है, मतलब चार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो इसमें तीन थे, कॉम्प्लीमेंट में जनरली क्या आएंगे 5, इसमें आपके पास 4 है तो यहाँ भी कितने आएंगे 4, इसमें आपके पास 4 है, यहाँ भी 4 है, और ये 4 एलिमेंट है, ये भी 4 है। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू, एंड नो एलिमेंट विल रिपीट, होगा ही नहीं। ठीक है, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है टेकिंग ऑल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब आपका यूनिवर्सल सेट अब कौन बन गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हम आपको कुछ सेट्स दे रहे हैं, उनके आप क्या लिखिए, कॉम्प्लीमेंट लिखिए। फिर से आपसे वो क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। अब आपका यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है इस केस में वो क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि आपका यूनिवर्सल सेट है वो क्या है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ natural numbers, it means the numbers starting from 1, just like that 1 2 3 4 5 6 7 8 dot up to infinite, है ना। नेचुरल नंबर में आपके पास इवन भी है, इसमें ओड भी हैं, कंपोजिट भी हैं, प्राइम भी हैं, बहुत सारे नंबर्स हम डिराइव कर सकते हैं, कहाँ से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्या कहते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट लिखिए, किन किन के, पहला है बेटा आपका x एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। क्या कह रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड वन इज x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। थर्ड वन इज x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव multiple of 3. Fourth one is x is a prime number, x is a prime number। इससे पहले आपको कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नंबर थ्योरी आनी चाहिए, किस किस नंबर को हम कैसे डिराइव करते हैं। फिफ्थ, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, x इज ए नेचुरल नंबर में n से डिनोट कर रहा हूँ, विच इज डिविजिबल बाय 3 and
5, ये है आपका। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल सेट आपको दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस यूनिवर्सल सेट आपको दिया है। ठीक है, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स विच दे आर नेचुरल। तो नेचुरल को हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड करते हैं, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, सब तरह के। क्या कहता है कि मान लीजिए मैं इसको सेट ए दे दूँ, इसको सेट बी दे दूँ, इसको सेट सी दे दूँ, इसको नाम डी दे दूँ और इसको मैं ई दे दूँ। हमें सबके कॉम्प्लीमेंट लिखने बेटा, सबके कॉम्प्लीमेंट लिखने। इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट। ये हमें डिराइव करनी है दिए हुए सेट से। यूनिवर्सल सेट हमें दिया है और उनके कुछ सबसेट्स दिए हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल दूं तो कौन से बचेंगे? ओड नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो कोशिश कीजिए कि आप आंसर उसका किस में दें? सेट बिल्डर में दें। ठीक है, इवन नंबर था तो ओड नंबर आ गया, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? यूनिवर्सल माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस सी। डी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस डी एंड ई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ई। मतलब आपको डिफरेंस करना सभी सेट का उनके कॉम्प्लीमेंट के लिए, किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। सेकंड वन इज x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो सिंपल सी बात है कि मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ओड माइनस करूंगा तो क्या बचेंगे? इवन, सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द बी कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट बी सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट ए सेट है। डेफिनेशन आप दे सकते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है? x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। भाई 3 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 3 का मल्टीपल नहीं होगा, वो चाहे फिर किसी का ही मल्टीपल हो, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? x सच दैट x इज ए पॉजिटिव, x इज नॉट ए, है ना, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है तो ये 3 का पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होगा। दैट इज व्हाट? C complement. What is D complement? X is a prime number. The numbers which they are not divisible by any of the number excepting one and itself. ऐसी नंबर, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक से और खुद से डिवाइड होती हों वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे ऐसे नंबर जो प्राइम भी हैं, को प्राइम भी है, कंपोजिट भी हैं, इवन भी हैं और ओड भी हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज द सेट ऑफ नंबर विच नेवर डिविजिबल बाई एनी ऑफ द नंबर एक्सेप्टिंग वन एंड इट सेल्फ। ऐसे नंबर जिनके कोई फैक्टर नहीं होते अदर देन वन एंड इट सेल्फ, एक और खुद को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जस्ट लाइक दैट। बहुत सारे नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं, तो उनको छोड़ दें तो जो नंबर बच गए वो कैसे होंगे? कंपोजिट। वो कैसे होंगे? कंपोजिट। लेकिन एक नंबर और बच गया, x इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे डी में? द डी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? x इज ए सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। किनका सेट होगा? कंपोजिट नंबर का। एंड x इक्वल टू 1 ऑल्सो। सेट कंपोजिट नंबर का तो होगा, लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से। और 2, 3 किस में गए? प्राइम में। तो नेचुरल नंबर 1 तो बच गया ना, इसलिए मैंने क्या लिखा? x इक्वल टू 1। एंड लास्ट वन इज x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। सीधी सी बात है कि अगर किसी सेट में वो नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते? तो क्या लिखेंगे? x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number which are not divisible by 3 and 5। ऐसे नंबर जो ना 3 से डिवाइड होंगे और ना 5 से डिवाइड होंगे। ये पहले 5 पार्ट थे। नेक्स्ट 5 पार्ट्स आपके हैं। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो कौन से आएंगे?
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? जिनका पूरा पूरा रूट एग्जैक्ट रूट आए। 1 है, 1 का रूट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, जस्ट लाइक दैट, है ना। ऐसी संख्याएं जिनका कंप्लीट रूट हमारे पास हो, दैट दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इनको छोड़ के, तो आपके पास जो 6th पार्ट है उसमें दिया है कि मान लीजिए मैं f उसको नाम दूँ x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बोला सर इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, क्या? f कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन x is not a perfect square, x is not a perfect square। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा के क्या लगा दूंगा? क्यूब। और यहाँ भी क्या लगा दूंगा? क्यूब। जस्ट द आंसर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बस ये सिंपल लॉजिक है भाई। आपको कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है? डिफरेंस तो करना है सेट का। तो जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं करते, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विच डजंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8 नंबर पार्ट में क्या कह रहा है कि हमने आपको मान लीजिए कोई सेट दिया है, उसमें x जो हमारा एलिमेंट है वो इस तरह से है कि x + 5 = 8 है। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ, x + 5 = 8, देन व्हाट इज x? 8 - 5, दैट्स वाई x = 3। इसका मतलब जो आपका सेट है उसमें x जो एलिमेंट है वो x = क्या है बेटा? 3। एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अगर मैं इसको a सेट मान लूँ तो इसमें क्या एलिमेंट है? 3। देन व्हाट इज a कॉम्प्लीमेंट? x इज एन एलिमेंट, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है कि जो x है उसमें 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा सर? 3 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट होंगे। और जो x है किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नेक्स्ट 9th पार्ट में दिया आपको x हमारा जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरह से है, 2x + 5 = 9। तो सिंपली है, मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2x = व्हाट? 5 उधर जाएगा, 9 - 5 इज व्हाट? 4, 2 2 जा 4, देन x इज व्हाट? 2। x कितना होगा? 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? पर सर कॉम्प्लीमेंट कहता है कि x बिलोंग्स टू, x जो हमारा नंबर होगा दैट x नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। पार्ट नंबर 10 में दिया आपको कि हमारा जो एलिमेंट x है वो कुछ इस तरह से है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x जो है बेटा वो क्या है? 7 या 7 से बड़ा। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 7 से छोटा। भाई 7 तो गया ना उसमें, इक्वल टू भी तो 7 है, तो 7 या 7 से बड़ा मतलब 7 से आगे तक के नंबर, 7 भी और उससे आगे तक के, तो 7 से कम वाले किस में रह जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए मैं इसको a सेट दूँ, कोई p सेट दूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट p कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x सच दैट x < 7 एंड x बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट 11th पार्ट, दैट इज व्हाट? x बिलोंग्स टू n एंड क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू n एंड व्हाट इज द कंडीशन? 2x + 1 ग्रेटर देन 10, 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो बोला सर मैं इसको इनइक्वलिटी को अगर सोल्व करूं, तो ये कहती है आपकी 2x + 1 ग्रेटर देन 10, दैट्स वाई 2x, दोनों साइड में 1 माइनस करो तो एक 1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 9, देन x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 9/2। लेकिन आपके जो आंसर है ना इसमें 1.5 का, जो ये फर्स्ट का जो है, ये जो थर्ड का लास्ट आंसर है, इसमें आपको x नॉट इक्वल टू दिया है, x नॉट इक्वल टू दिया है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी में है। 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो 9th पार्ट है लेस देन इक्वल टू में। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारा ये 9/2 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर, 9/2 इज व्हाट? 4.5, 4.5, 4.5, उससे बड़ा नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा? 5 से। तो उससे कम और उसके इक्वल तो ले सकते हैं ना। तो क्या आएगा? जो कॉम्प्लीमेंट आएगा इस सेट का वो लिखा जाएगा x such that x belongs to natural number and our x is less than equal to 9/2। बस ये है आपका। This is the complete introduction of the question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 1.5 that totally depending on the complement of the set. In the next class we are continuing with the exercise to apply some properties of the complement of a set. Thank you. Have a nice day.